ریٹ فائل مل گیا ہے اور اس کیپیسٹی کے ساتھ کہ وہ ان کو جو ہے نا اسٹریٹ اوے سنا سکتے ہیں. مزہ آیا. لیکن یہاں تو وہ بات یہ کہ بھینس کے آگے نہیں جی سر. یہ سر تھوڑا پیچھے ہو جائے, تھوڑا پیچھے ہو جائے, تھوڑا پیچھے ہو جائے. چپ کر لو. کیوں سر کیوں؟ آج محترم عمران خان صاحب کی تاریخ تھی جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ کے پاس لگی ہوئی تھی. 12 بجے کا ٹائم تھا. 12 بجے سے ہم 1:45 بجے تک بیٹھے رہے اور پسینے میں شرابور ہو کر بیٹھے رہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بالا عدالتوں میں وقت دیا جائے اور اس وقت کے برعکس جو ہے یہ میجسٹریٹوں میں تو ہوا کرتا تھا کہ چیمبر میں ڈائننگ روم میں بیٹھ کے چائے پیتے رہتے تھے یا ٹی وی دیکھتے رہتے تھے. ہائی کورٹوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. میں نے شکایت بھی برملا اگرچہ چیف جسٹس صاحب نے اس کی معذرت کی, لیکن میں نے کہا جی یہ کٹسی ختم ہو گئی. ہم آپ کی عزت کرتے تھے, آپ کو ہمارا عزت بھی بڑھول ہونی چاہیے. ہم پسینے سے شرابور ہو کر جو ہے یہاں 2 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے اور آپ نے جو ہے ٹائم دے کے پھر میں نے ان کو بتایا کہ ایڈیشنل سیشن جج جیل میں جا گیا ہے انسپیکشن کرنے کے لیے, اور اس نے لکھا ہے کہ خان کے کمرے کے باہر جو ہے وہ لگا ہوا تھا کیمرہ لگا ہوا تھا جو ان کو نہانے کی جگہ اور جو ان کو انخلا کی جگہ تھی وہ کھلی تھی. یعنی شرمناک جو ہے, شرم آنی چاہیے ان کو کہ کوئی بھی ہو, سابقہ وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی پریزنر ہو, کیا اس کی آپ اس طرح سے پرائیویسی میں کیمرے نکال کے اس کو نہاتا دیکھیں یا وہ اپنا انخلا کے لیے جائے اور آپ اس کی جو ہے اس طرح سے تصویریں کیمرے میں دیکھتے پھریں. یہ آج تک نہیں ہوتا دنیا میں. یہ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ. اور پھر اس نے کہا کہ ایڈیشنل سیشن جج نے رپورٹ دی ہے جو میں نے آج پیش کی ہے اس عدالت میں, عدالت عالیہ میں, اور اس نے کہا ہے کہ انہوں نے مجھے شکایت کی, تنگی کی ساری. اب اندازہ کیجئے گا حکومت اس کو بیٹر کلاس دے رہی ہے. جو سزا ہے وہ سمپل امپریزنمنٹ ہے, مشقتی سزا نہیں ہے, سادہ سمپل امپریزنمنٹ ہے جو سزا دی ہے. اور اوپر ترا یہ کہ اس کو بیٹر کلاس دی ہے اس لیے کہ وہ اسٹیٹس کے مطابق دیتے ہیں. وہ سابقہ وزیر اعظم ہے اور ایسی جگہ پہ اسے رکھا ہوا ہے اٹک جیل میں جو جانوروں لائق بھی نہیں ہے جہاں رکھا جائے. یہ جو ہے میں نے اس کو دی ہے, بتائی ہے اس کو. اور کل میں نے خان سے ملنا بھی ہے اس لیے کہ ان کی طرف سے ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ ضرور پلیز ملیے گا, تو میں نے آج ان کو بتایا ہے جو چیف صاحب نے اجازت تو دی ہے. آج جب شروعات ہوئی بحث کی تو وہ وکیل صاحب آ گئے ایک مدعی کی, پتہ نہیں اس کے لیے کون انتظار کر رہا تھا. مدعی کے وکیل صاحب وہ ہیں جو میرے شاگرد کے شاگرد ہیں, جو وزیر قانون کے, اور ماشاءاللہ وہ شروع دن سے, پہلے دن سے وہ وکیل ہیں مدعی کے, پہلے دن سے الیکشن کرو سارے ٹرائل میں موجود ہیں, اور کہتے ہیں جی مجھے تیاری کے لیے وقت چاہیے. جج صاحب نے کہا بھائی تم تو خود بیچ میں رہے ہو, 2 ہفتے چاہیے مجھے. میں نے کہا سبحان اللہ, جب ہم نے مخالفت کی تو کہتا ہے 10 دن دے. تو پھر میں نے کہا جناب جج صاحب بہت اولیاء. اس دن جب میں نے پہلے دن آپ کو بحث کی تھی, آپ نے اپیل سماعت کے لیے منظور کی تھی, اسی دن آپ کو معطل کر دینی چاہیے تھی سزا, اسی دن آپ کو سسپینڈ کر دینی چاہیے تھی سزا. پھر بھی آپ نے باوجود نوٹس دیا شارٹ ڈیٹ کے لیے, اور وہ تب اس لیے نہ لگ سکا کہ آپ بوجہ علالت چیف جسٹس صاحب بیماری کی وجہ سے عدالت نہیں کر پا رہے تھے, جس وجہ سے تساہل ہو کر آج لگی تھی. میں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ یہ آپ میری زندگی کا حق مجھ سے چھینا لیں, جو اللہ کے ہاتھ دی ہوئی ایک انعام ہے انسان کو, اور آئین میں اس کا تحفظ کیا گیا ہے.
आइन में उसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। और ये हर दिन हर लम्हा जो मेरा गुजर रहा है ये मेरी ज़िंदगी से काट रहे हैं आप, जिसका किसी दुनिया में किसी शख्स को किसी अदालत को अख्तियार नहीं है, क्योंकि ये बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है। और मैंने कहा जी ये देखें कि फसाद की सबसे बड़ी जड़ इस सारे गुनाह की जो एक शाखसाना है वो तो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने ये फैसला दिया कि इमरान खान जो है वो 62-63(1) में ये डिसक्वालीफाई हो गए हैं, ये नाअहल हो गए हैं। और आगे लिख दिया कि इनके खिलाफ जो है फौजदारी मुकदमा भी कायम किया जाए। अच्छा, अब अंदाज़ा करें कि वो ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ और उसमें एडमिट हो गया है और उसमें कहा गया कि कोई इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी इसके पादाश में। और देखें कितने खुले नंगे तौर पर उसका प्रोसिक्यूशन भी हुई और सजा भी हुई। और फिर मैंने कहा जी आप ज्यूरिसडिक्शनल इनकैपेसिटी है, उस अदालत को अख्तियार ही नहीं था एडिशनल सेशन जज को ये केस सुनने का, इसलिए कि सेक्शन 193 CRPC कहता है कि कोई सेशन कोर्ट बराह रास्त कोई केस नहीं सुन सकता, वो मैजिस्ट्रेट के पास जाता है, मैजिस्ट्रेट रेफरल करता है 193 में कोर्ट ऑफ सेशन अगर हो। और मैंने 2022 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू का हवाला दिया एग्जैक्ट इसी नुक्ते पर उन्होंने सेशन के ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया, एग्जैक्ट इसी पर। तो फिर मैंने कहा कि ये तो सारा ट्रायल ही जो है गैर आइनी है और ये इसकी सज़ा जो है वो कलअदम है और ये नॉन एस्ट है। फिर मैंने कहा जी दूसरी बात ये है कि ये कंप्लेंट जो मुद्दई किया गया है जैसे इलेक्शन ऑफिसर वो कर ही नहीं था सकता कंप्लेंट जो है ये इलेक्शन एक्ट के तहत, क्योंकि उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंप्लेंट कर सकती है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी को डेलीगेट कर सकती है। यहाँ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन एग्जैक्ट इसी पर। तो फिर मैंने कहा कि ये तो सारा ट्रायल ही जो है गैर आइनी है और ये इसकी सज़ा जो है वो कलअदम है और ये नॉन एस्ट है। फिर मैंने कहा जी दूसरी बात ये है कि ये कंप्लेंट जो मुद्दई किया गया है जैसे इलेक्शन ऑफिसर वो कर ही नहीं था सकता कंप्लेंट जो है ये इलेक्शन एक्ट के तहत, क्योंकि उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंप्लेंट कर सकती है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी को डेलीगेट कर सकती है। यहाँ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नहीं है सेक्रेटरी, वो एक मुलाजिम होता है, वो कंप्लेंट जो है करता है वो कैसे कर सकता है, ना उसको कोई डेलीगेशन है। सेक्रेटरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को दे रहा है और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है कंप्लेंट कर रहा है। तो ये कंप्लेंट ही जो है इनकॉम्पिटेंट है, ये नाकाबिल है, ये एक रद्दी का कागज़ का टुकड़ा है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। और फिर मैंने कहा कि उसमें भी लिखा हुआ है 120 दिनों के जो डिक्लेरेशन जो फॉर्म, ये मुझे कोई तोशे खाने की सज़ा नहीं दी गई, ये सज़ा दी गई है कि आपने जो डिक्लेरेशन दिया है हर MNA देता है, मैं खुद 10 साल देता रहा हूँ, 31 दिसंबर को देना पड़ता है और 19 जून पिछले साल का जो आपके महासल होते हैं, जो आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ होती हैं, उसका आप एक मशवरा देते हैं आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस डिक्लेरेशन से 120 दिनों के अंदर जो है कंप्लेंट हो सकती है, जहाँ तो कई सालों के बाद कंप्लेंट हो रही है। तो ये ज़ायदुल बुनियाद भी है। तो मैंने कहा जी मेरिट को भूल जाएं, मेरिट भी अगर जाएंगे तो उसमें भी मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, ढेले की इसमें कोई ऐसी ना तो फैलाने का मामला इन्वॉल्व है। और फिर मैंने ख्वाजा आसिफ के सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। ख्वाजा आसिफ जो बड़ा धनंतर बनता है इस वक्त, वो मुलाजिम था UAE में और हमा वक्त मुलाजिम था, फुल टाइम मुलाजिम था और तनख्वाह लेता था जब वो यहाँ डिफेंस मिनिस्टर भी था, जब फॉरेन मिनिस्टर भी था। और उसको जब नाअहल किया हाई कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर उसको जो है कर दिया कि जी वो हर नाअहली हर चीज़ की जो है इंदराज जिक्र न करना डिक्लेरेशन में, वो करप्शन नहीं होती है।
डिक्लेरेशन में अगर कोई करप्शन से हासिल किया हुआ पैसा हो, यहाँ तो कोई करप्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर कोशा खाने का सारा केस भी ले लें, करप्शन तो है ही नहीं। मुरवजा वक्त के मुताबिक पैसे दे के खान साहब ने लिया, जो असेसमेंट की वो भी सरकारी असेसमेंट होती, तो इसमें तो कोई एलिमेंट था ही नहीं। तो मैंने कहा जी ये आप दे लें, और ये मैं एक दिन भी मैं आपको तारीख देने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आपसे ये न सुनवाए जाएँ केस, क्योंकि आपने जितने फैसले किए हैं आपने सारे इमरान खान के खिलाफ फैसले किए, और जब आप मंजूर भी करते थे तो फिर उसी के पास वापस भेज देते थे। कभी आज तक हुआ है कि निगरानी एक्सेप्ट की जाए, रिवीजन एक्सेप्ट की जाए, और फिर उसी को कहा जाए कि तुम फैसला करो, जो फैसला ऑलरेडी दे चुका है। 2 मरतबा यही किया है। और फिर मैंने कहा जी कि अगर आज आप मुलतवी करेंगे तो फिर आज ख्वाजा हारिस नहीं आया, कल हो सकता है मैं भी ना आऊँ, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर ये है कि आपसे न सुनो, और आप इसलिए के बायस में एक तरफ तो टाइम है कि जब इसकी डिफेंस इमरान खान की स्ट्राइक ऑफ की गई, सफाई देने का मौका इसको बंद कर दिया गया, वो उसकी जब हमने नालिश की तो आपने नोटिस किया, नोटिस दे के आपने प्रोसीडिंग स्टे क्यों नहीं की? अब क्या होगा, वो रिवीजन पेंडिंग यहाँ पड़ी हुई है, तो क्या अचार बनाएंगे? अचार बनाएंगे? आपने उसको तो इनाम दे दिया, उस एडिशनल सेशन जज को अगले ही दिन लंदन में भेजा गया है। एक को रिमूव करके, जिसका नाम जाना था जिसने, उसका नाम हटाकर इसको इनाम के तौर पर भेजा गया है लंदन में, और लंदन में वो वसूली करने गया है इमरान इससे, नवाज शरीफ से, और उसके साथ वो जो है लंच या डिनर या जो भी ये कर रहा है। तो क्या इस तरह से सजाएं की जाएंगी? और ये जो है क्या बनाना रिपब्लिक बना दी है? तो मैंने कहा कि जी आज से हमारा फिर जो है, हम भी फिर जो चीज़ें नहीं कहना चाहते थे अदालत की तकरीम में, अदालत की ताज़ीम में, इस इदारे के तकद्दस के तौर पर, ताकि दुनिया तमाशा ना देखे, फिर हमारे ऊपर प्रेशर जो है क्लाइंट्स का भी होता है। आज ही आप फैसला करें, भले मैं ये नहीं कह रहा मेरे हक में करें, जो करना है आज आप करें। और 6 महीने तो सदर ने 14 अगस्त को माफ़ी दे दी, 3 साल सारी सज़ा है, सुप्रीम कोर्ट के बेबहा फैसले की शॉर्ट सेंटेंस है, और इसको सज़ा जो है हमेशा इनवेरिबली हुई, और वो जो है फिर भी उसको 2 दिन दिए, तो फिर देखेंगे कि इंशाल्लाह क्या होता है। लेकिन अब आमिर फारूक साहब इसलिए सुन नहीं सकते ये केस, क्योंकि इनके जितने फैसले हैं वो इन्हीं के फैसलों की वजह से उसने सजा दिया। तो क्या हम अपने ही फैसलों के खिलाफ ये अपील सुनेंगे? क्या ये अपने फैसलों के खिलाफ खुद अपील सुन सकते हैं? वो भाई फैसले तो आपके हैं, जो आपने बार बार उसे भेजा कि फैसला कर, 7 दिनों के अंदर फैसला कर, तो फिर आप ही के फैसले आप खुद सुनेंगे। तो इन्हें तो खुद मैं आज आपके तवज्जुह से ही एक इल्तिजा करूँगा कि बेहतर है कि इस केस से ये अपने आप को अलहदा कर लें, क्योंकि यहीं आपके एक साथी ने बड़ा खूबसूरत ये मुझे बताया कि अपने ही फैसलों के खिलाफ ये कैसे अपील सुन सकते हैं, और ये यही है कि इन्हीं के फैसले अब क्या अपील में ये अपने फैसलों के खिलाफ। इसी तरह है जिस तरह एडिशनल सेशन जज को इन्होंने कहा कि तुम्हारा ये फैसला गलत है, तुम फिर इसको फिर दूसरी दफा किया, फिर उसको कदम करके फिर कहते हैं दोबारा तुम इसको सुनो। तो अब अपने ही फैसलों के खिलाफ क्या खुद सुनेंगे जो इन्होंने उसके खिलाफ किया। तो ये यकीनी बात है कि मैं सुधा करूँगा कि आप रिफ्यूज़ करें और कोई और बेंच इसको सुने, ताकि वो जो शायद का है जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सीन टू बी डन। साफ सिर्फ करना नहीं चाहिए, साफ